Hello friends, welcome to the channel. Today we will do one background reading of very important subject of Delhi University. It is paper 3 Indian writing in English and unit 5 background readings. The topic is annihilation of caste. We will understand the whole topic and you will get to know each and everything about this particular topic, this particular essay, annihilation of caste. Please pick a pen and paper and do note down each and everything, and do not forget to share and subscribe the channel to keep getting important literary information of Delhi University syllabus. Annihilation of caste, it was initially prepared to be a speech. पहले ये speech deliver की जानी थी by Ambedkar for the 1936 annual conference of the Jat Path Todak Mandal of Lahore. It is written here. It was a speech but not delivered. Deliver नहीं की गई. It was never delivered as the conference was cancelled because the committee considered that the views expressed in the speech would be unbearable to the people. लोग सह नहीं पाएंगे ऐसे views प्रोड्यूस करने वाले हैं अम्बेडकर जी. In the speech, he basically talks of the origins of caste system. कास्ट सिस्टम किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से इफेक्ट किया उसने इस कंट्री को, और कैसे कास्ट सिस्टम को एक्चुअली अबॉलिश किया जाना चाहिए. कमिटी के लोगों ने सोचा कि ऐसे व्यूज, ऐसे रेडिकल व्यूज लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. समथिंग अगेंस्ट कास्ट पीपल कैन नॉट टॉलरेट. He also talks of the possible ways and steps through which to achieve this annihilation of caste. उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे कि कास्ट को completely abolish, completely cancel, completely खत्म कर दिया जा सके. So this is the speech which could not be delivered earlier, and later he published it in the form of essay in a pamphlet. तो अम्बेडकर जी ने अपनी उसी स्पीच को बाद में पब्लिश किया था. Actually, initially it was a speech prepared but not delivered. Even Gandhi gave his viewpoints in favor of this speech. In July 1936, Mahatma Gandhi wrote article under the title Vindication of Caste in his weekly journal Harijans, in which he made comments. क्या comments दिए हैं देखते हैं. उन्होंने अम्बेडकर जी को डिफेंड किया है, उनकी इस डिलीवरेंस ऑफ स्पीच को डिफेंड किया है और कंडेम किया है जात पात तोड़क मंडल को इस स्पीच को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो मंडल ऑलरेडी ये जानता था कि अम्बेडकर जी एक क्रिटिक है हिंदुइज्म के और कास्ट सिस्टम के, तो उनको कैसे रोका जा सकता था स्पीच डिलीवर करने से. This is what Mahatma Gandhi ji said about the speech. The readers will recall the fact that Dr. Ambedkar was to have presided last week at the annual conference of the Jat Path Todak Mandal, जिसका नाम ही है कि जात पात को तोड़ दिया जाना चाहिए. वही लोग टॉलरेट नहीं कर पाए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक स्पीच है. But the conference itself was cancelled because Dr. Ambedkar's address was found by the reception committee to be unacceptable. उन लोगों को unacceptable लगा, उन्होंने cancel कर दिया. How far a reception committee is justified in rejecting a president of its choice because of his address that may be objectionable to it is open to question. तो एक कमिटी अपने ही प्रेसिडेंट के एक स्पीच डिलीवरी ओकेजन को कैसे कैंसिल कर सकती है. The committee knew Dr. Ambedkar's view on caste in Hindu scriptures. They knew also that he had in unequivocal terms decided to give up Hinduism. ये लोग जो अम्बेडकर जी थे ये हिंदुइज्म को गिव अप करना चाहते थे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे. Nothing less than the address that Dr. Ambedkar had prepared was to be expected from him. ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था डॉक्टर अम्बेडकर से जो कि उनकी स्पीच में नहीं है. The committee appears to have deprived the public of an opportunity of listening to the original view of a man who has carved out for himself a unique position in society. एक पर्सन जिसने अपना इतना अच्छा स्टेटस क्रिएट किया है सोसाइटी में, उसके एक बहुत अच्छे स्पीच से लोगों को वंचित कर दिया गया, डिप्राइव कर दिया गया. Whatever label he wears in future, Dr. Ambedkar is not the man to allow himself to be forgotten. Dr. Ambedkar एक ऐसे इंसान है जिनको future generation कभी भी भुला नहीं सकती है. This was the stand of Dr. Ambedkar in the eyes of Mahatma Gandhi. लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अंबेडकर जी के लिए भी कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं. He added that the standard set by Ambedkar would fail everyone, every known
लिविंग फेथ, हर फेथ को फेल कर देगा। देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। In my opinion, the profound mistake, major mistake that Dr. Ambedkar has made in his address is to pick out the text of doubtful authenticity and value and the state of degraded Hindus who are no fit specimens of the faith they so woefully misrepresent. Judged by the standard applied by Dr. Ambedkar, every known living faith will probably fail. हिंदूज के एक फेथ को इन्होंने चैलेंज किया विच एवरी हिंदू ऑफ द नेशन विल नॉट एक्सेप्ट इजीली एंड सब लोगों का ही फेथ इसी वजह से फेल हो जाएगा। Now let us know Dr. Ambedkar, 1891 born and 1956 died. This is the full name Bhimrao Ramji Ambedkar, the full form of B.R. Ambedkar. He was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader and whatnot. He headed the committee drafting the Constitution of India as well. Father of Constitution भी बोला जाता है उनको. And he is very famous for debate, served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru's government and inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. हिंदुइज्म को त्याग कर इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। अब देखते हैं सबसे पहला काम वो क्या करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। अंबेडकर हाईलाइट्स द नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट होने की जरूरत है, टूट कर सब कुछ दोबारा से बनने की जरूरत है, स्पेसिफिकली द कास्ट सिस्टम। एंड ही अर्जेस हिंदूज टू एडमिट दैट वन कास्ट इज नॉट फिट टू रूल अनदर कास्ट। ह्यूमन बीइंग होकर आप एक ह्यूमन बीइंग होकर दूसरे ह्यूमन बीइंग पर कैसे रूल कर सकते हैं। इन दिस इन्फ्लुएंशियल एड्रेस अंबेडकर कॉल्स आउट द फेलिसी ऑफ सोशलिस्ट। किस तरीके से क्या गलती है हमारी सोसाइटी की। On no front will they unite us the feeling of equality, fraternity and justice and can never be achieved till the time caste system prevails. तो सिंपल वर्ड्स में उनका मानना था कि फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, इसकी उम्मीद ऐसी किसी कंट्री में कैसे की जा सकती है जहां पर कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को रूल करता है एज पर दी रूल्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। नाउ स्पीकिंग अबाउट फ्रीडम, ही सेज कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों, ऐसा क्यों कि कुछ कास्ट हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनका काम डिसाइड कर दिया गया है कि ब्राह्मण सिर्फ मंदिरों में काम करेंगे, क्षत्रिय सिर्फ वॉर्स में जाएंगे, वैश्य सिर्फ बिजनेस करेंगे और शूद्रा सो कॉल लो ग्रेडेड काम करेंगे, सिर्फ लोगों के घर में साफ सफाई का। तो ऐसा क्यों डिवीजन ऑफ लेबर क्यों कर दिया गया है। व्हाई आर दीज थ्री कास्ट्स रूलिंग ओवर दीज शूद्रास। तो ऑक्यूपेशन को तो आप लोगों ने बिल्कुल नॉन परमिट कर दिया, शूद्रास के लिए उनका काम डिसाइड कर दिया। इस तरीके से तो इस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बुक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा कि हिंदूज डू नॉट पोजेस कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, रादर दे ओनली पोजेस कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट। अपने आप को बिल्कुल एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक वे में नहीं देखते हैं हिंदूज और अपने आप को हाई प्रोफाइल देखते हैं। अगर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हैं तो वो अपने आप को वो हाई प्रोफाइल मानते हैं और सिर्फ कास्ट की सेंस में अपने आप को जज करते हैं। हेंस द हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ डिफीट एंड डार्कनेस। सिर्फ कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखने का मतलब है कि आप लोग कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट इग्नोरेंस में जी रहे हैं। अब बात करते हैं चतुर्वर्णा की, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। Calling Chaturvarna absurd, he says that Varna system, which has been made to safeguard people, curbs the paramount requirements of self-preservation by denying a Shudra physical, पॉलिटिकल और मॉरल राइट्स। चतुर्वर्णा कहते तो है कि कास्ट सिस्टम लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, राइट्स को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्वेशन। लेकिन ऐसा कहते कहते ही हम किसी भी शूद्र को किसी भी तरीके का फिजिकल, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल और किसी भी तरीके का मॉरल राइट डिनाई करते हैं। शूद्रास आर इल ट्रीटेड बाय त्रयवर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन त्रय वर्णों के द्वारा शूद्रस का शोषण किया जाता है।
What did Ambedkar offer as solution to abolish the caste system? Caste system को annihilate करने के लिए दो उपाय बताए गए, intercaste marriages and destruction of religious scripture. Intercaste marriage से fusion of blood होगा and it will mitigate, dissolve and abolish caste, and therefore intermarriage is a remedy. This is what he suggested. However, he still goes further. Intercaste marriage को थोड़ा सा और analyze करने के बाद वो कहते हैं कि maybe it will not abolish caste so long as the idea of caste remains in the people's minds. लोगों के दिमाग में है, दिमाग से हटाना ज़्यादा ज़रूरी है. He says that in observing caste, people are doing nothing bad or wrong. They are simply following their religion. अपने religion को follow करें कि हमारे तो religion ने कहा है कि चार systems होती हैं, चार वर्ण system, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हम और कुछ नहीं कर रहे, हम तो scriptures को follow कर रहे हैं. Thus, he says what needs to be done is that the religious shastras must themselves be uprooted. इनको मानने से इनकार कर देना चाहिए and their authorities must be denied as was done by Lord Buddha and Guru Nanak. It is only when the authority of the Shastra goes away, caste can actually be abolished. कास्ट को एनिहिलेट तभी किया जा सकता है जब हम शास्त्रास को सुप्रीम मानना बंद कर देंगे. दिस इज व्हाट अंबेडकर गेव एज अ रेजोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. लेट अस सी क्या कहकर वो अपने इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं. अपने बारे में वो कहते हैं, ही हैज नेवर बीन अ टूल ऑफ पावर और अ फ्लैटरर ऑफ ग्रेटनेस. वो कभी भी फ्लैटरर नहीं रहे सो कॉल्ड ग्रेटनेस के. ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्चर्स हैं तो वो उसको फ्लैटर ही करेंगे, बट वन हु हैज ऑलवेज ओनली स्ट्रगल्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ द पुअर एंड अदर ऑप्रेस्ड. जो लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, शेड्यूल्स हैं, उनके लिए स्ट्रगल ही किया है उन्होंने हमेशा. ही सेज दे आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिज व्यूज. जो भी व्यूज उनके हैं, अंबेडकर के हैं, वो अपने बारे में कहते हैं जो भी मेरे व्यूज हैं, पीपल आर फ्री टू फॉलो इट और नॉट टू फॉलो इट. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इवन इफ दे डू नॉट डिस्ट्रॉय कास्ट इन द वे he has said, they must do it in their own way. लेकिन कुछ भी करो, कास्ट सिस्टम को खत्म जरूर करो. He will be ready for help and assistance in this cause, but he will not be one of them anymore. One of them anymore से मतलब है कि he will not be one of those who still believes in caste system. Here perhaps he indicates his conversion to Buddhism. अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था उन्होंने और हिंदुइज्म को मानने से मना कर दिया था. He says caste is a Hindu construct, but it has made the atmosphere full and bitter even for Muslims, Christians and Sikhs. कास्ट को क्रिएट जरूर हिंदू स्क्रिप्चर्स ने किया है, लेकिन ये बाकी सोसाइटीज के लिए भी, सोसाइटी के बाकी रिलीजन्स के लिए भी नेगेटिव ही प्रूव हो रही है. He says कि it is quite difficult to destroy caste than to gain independence. आजादी मिलना, अंग्रेजों से आजादी मिलना शायद मुश्किल है, लेकिन कास्ट सिस्टम से आजादी मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. बट ही ऑल्सो थिंक्स दैट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डिस्ट्रॉय कास्ट, बिकॉज जब तक पूरा देश एक नहीं हो जाता, यूनाइट नहीं हो जाता, हिंदू सोसाइटी अपने आप को भी कैसे डिफेंड कर पाएगी. द होल नेशन इज यूनाइटेड फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए तो आप यूनाइट हो जाते हो, तो कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए यूनाइट क्यों नहीं होते, आपस में ही क्यों बटे हो. Thus, according to him, for Hindu society to be one and united as a nation that is able to defend itself, it is necessary to destroy caste. तो अगर यूनाइट कहलाना है अपने आप को, तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम को खत्म करना होगा. दिस इज व्हाट ही सेड इन Annihilation of Caste, and this is what the title of this essay is: Annihilation of Caste, Destruction of Caste. Please do not forget to like, comment and share this video, and do subscribe the channel. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link in description to get connected to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.